A very good morning, class. How are you all? As you know, we were reading Unit 10 Coming Home to Delhi by Madhur Jafre, and up to para 5th we have read, and today we will proceed with para 6. Okay, so class, let's revise first so far what we have read, and then we will proceed our chapter. Okay. So in this chapter, the author, narrator Madhur Jafre is coming to Delhi at her grandfather house. When the lesson start, it's begin with a journey by a train. We author and her family, mother, cousins, and all they are in a train, and the time is all about morning, a morning of dawn and dusk. I have already mentioned the dawn and dusk, it means the time just before sunrise, okay, and the time just after sunset. सो तो ये दो टाइम है, बट जब ऑथर एंटर ले रही है दिल्ली में तो उस टाइम पे सुबह हो रही है. ओके, सुबह क्या हो रही है? हो रही है. तो ये टाइम कैसा है? ये डाउन डस्क टाइम है. ओके, सो इसमें एक मिथ का इन्होंने डिस्कशन किया है. यू नो वेरी वेल अबाउट व्हाट इज़ मिथ. मिथ जो होता है, मिथ लाइक बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीज़ों को सोचते हैं कि ये कुछ अपनी खुद से मैंटेलिटी को साइकोलॉजिकली सेट कर लेते हैं कि ये ऐसे होगा. फॉर एग्जांपल कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मैं लेट के पढ़ाई करूँगा तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा. इट्स अ मिथ, इट्स नॉट. ये केस हमेशा सबके साथ नहीं हो सकता है. कुछ लोग बोलते हैं कि अगर जो हमारी कैजुअल यूज़ की स्लीपर्स होती हैं वो एक के ऊपर एक आ गई है, देन किसी की फ़ाइट होगी. नो, इट्स just ridiculous. It's not going to happen anyway in your life, but it's just a myth, and we are following different kinds of myth in our life, and we just don't need to follow. We have to believe only the reality what is it, बस इसके अलावा और कुछ नहीं. Well, they are following a myth. What kind of myth that was? कि कॉइन फेंकेंगे ये लोग, और when the train passes through the Yamuna river, okay, ये जो ब्रिज, जो ट्रेन है वो एक ब्रिज पे जा रही है अबव यमुना रिवर, एंड दे विल थ्रो कॉइन्स, एंड इफ कॉइन टच, okay, if coin touches to the water of Yamuna, then they will get blessed, they will be blessed by God. Otherwise, if it touch to the mud, to dust, or to washerman, or to any other article, anything, or through boat, whatever other than water, so they will be not blessed. ये इनका एक मिथ था. ओके, नाउ शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट Delhi Sultanate, as Delhi was the Sultanate of Mughal Empire. Okay, and Mughal Empire, you know very well, Shah Jahan, Bahadur Shah Zafar, ओके, अकबर. तो इनका एक रूल रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक दिल्ली पर. और दिल्ली एक सेंटर है, एज यू नो, इट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है. तो शी इज़ ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेंड, द फूड आइटम्स, और लेट्स से द कल्चर मुगल एम्पायर बॉट फ्रॉम पर्शिया, मीन्स फ्रॉम ईरान. तो जब ये ईरान से आए थे तो वहाँ के जो खाने थे वो यहाँ पर भी खाए जाने लगे, लाइक कबाब्स, ओके, एंड मीट बॉल्स, एंड बिरयानी, पकौड़ी, समोसाज, राइस, पुलाव कंबाइंड विद मीट जिसे बिरयानी कहा जाता है. ओके, सो इसका टाइप की ये सब डिशेज़ यहाँ पर लेकर आए हैं. तो शी टॉल्ड इन सेम स्टोरी दैट हर uncles and father also really fond of eating delicate kebabs. Okay, and women जो है वो allowed है एजुकेशन ले सकती हैं, ये जिस टाइम की बात कर रही हैं, बट बहुत ज़्यादा वो घर पे ध्यान ज़्यादा देती हैं. घर के जो बच्चे होते हैं वो ओल्ड एज जो दादू दादी हैं उनसे ज़्यादा अटैच्ड हैं. सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद पैरा 6.
Preparations for the picnic would begin early in the morning. Potatoes in a hot tomato sauce, golden puris, warm most meatballs, and jars of pickles would be packed along with fruits in large baskets. As I told you, now she's telling about picnic tour, how they plan their picnic and how they proceed their picnic. Okay, so early morning they started their preparation, especially making women are really busy in making different kinds of dishes, hot tomato sauce, golden puri, obviously puri must be golden. Okay, meatball, jar, pickles means achar, as you know, fruit basket. Fruits are really compulsory for picnic, and I think the most important fruit each and everyone must have and they usually have is banana. Wherever we go, we always bought bananas. Maybe same thing happens with you, but I have noticed whenever my family or I saw some people, वो बनाना ज़रूर लाते हैं. ओके, 2 cars would stand ready. 2 कार हमेशा रेडी रहती हैं 3 को पिकनिक लेके जाने के लिए. ग्लीमिंग इन द सन, जो सन में यानी सन की रोशनी की वजह से चमकती रहती थी. द फर्स्ट लेयर कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट लेडीज एंड टीनेजर्स. फर्स्ट लेयर, वाई फर्स्ट लेयर? As I told you, not me, the author told you that family size in that time is nearly 30. Okay, 30 person in a family, so that is why 30 or more than 30. So that is why this much amount, this much member could not be sit in just 2 car. They can't sit. Okay, तो इसमें लेयर बनानी पड़ेगी. फर्स्ट लेयर मीन्स तो बड़े बड़े लोग बैठ जाएंगे, देन उनकी गोद में दूसरे बैठेंगे. दैट इज़ वाई इन दिस सेंस ही सेइंग फर्स्ट लेयर कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट लेडीज एंड टीनेजर्स. टीनेजर्स बैठ जाएंगे, हु आर टीनेजर्स लाइक 13-14, ओके, अप टू 19 ऑन देयर लैप्स, और फिर उनके पैरों पर. व्हेन द सेकंड लेयर, देन सेकंड लेयर आएगी कंसिस्टिंग ऑफ 10 to 12 years ओल्ड, छोटे बच्चे जिनका वजन थोड़ा कम होता है. द थर्ड लेयर कंसिस्टेड ऑफ ऑल दोज बिलो द एज ऑफ 10. एंड देन वो जो छोटे बच्चे होंगे उनकी भी गोद में कोई छोटे बच्चे बैठेंगे, वो भी बहुत हल्के फुल्के वाले, बिलो 10, 10 से छोटे वाले. वेरी गुड. हैव यू एवर सीन लाइक कोई रक्षा, कोई ऑटो जिसके अंदर ऑलरेडी इस टाइप से लेयरिंग आपने देखी होगी? यू माइट हैव सीन, राइट? तो एक लेयर, देन उस पर दूसरी लेयर, देन थर्ड लेयर तो खैर हम देखते नहीं हैं, बट शी इज टेलिंग अबाउट थर्ड लेयर अप टू थर्ड लेयर. Okay, so first layer with short ladies and teenagers, second layer with 10 to 12 years old kids, then final layer is below 10. Okay, the tall men sat in the front seat. On their laps sat the 10 to 12 years old, holding the basket and pots that could not be stuffed into the trunk. एंड देन जो टॉल मैन थे वो फ्रंट सीट पर यानी आगे की तरफ बैठते थे, और उनकी गोद में भी ऑन देयर लैप्स, ऑब्वियसली उनकी लैप्स पर भी चिल्ड्रन बिठाएंगे जब सब एडजस्ट होना है. तो 10 to 12 ईयर ओल्ड उनकी लैप्स पर बैठते थे. एंड दोज किड्स मस्ट हैव दोज आर्टिकल्स विच आर कंसिडर्ड लाइक फ्रेजाइल. ओके, जैसे कि कांच के जार, अचार, या फिर जो उनकी जगह नहीं बन पाई ट्रंक में, वो आइटम्स उनको दे दिए जाते थे. ऐसा हम भी अपनी यूजुअली जो कहीं जाते हैं आसपास जर्नी में तो ये करते हैं कि जो चीज़ बहुत फ्रेजाइल है उसको हम थोड़ा बचा के रखते हैं, अपने पास रखते हैं. ओके, वंस वी रीच द गार्डन ऑफ द कुतुब मीनार, द चिल्ड्रन वुड रश टू क्लाइम द सैंडस्टोन. सैंडस्टोन मीन्स सॉफ्ट येलो और रेड रॉक ऑफन यूज इन बिल्डिंग्स, जिसकी बनी हुई है पूरी कुतुब मीनार. Tower. While the picnic was laid out on a large cotton sheet, once we saw all the food laid out, we would thunder down the hundreds of steps, jostling and competing to get there first. सब खेलने में लगते, मस्ती करते,
और उसके बाद जैसे ही टर्न आता कि एक बड़ी सी चादर बिछा कर, या फिर आपने देखा होगा पिकनिक पे जाते हैं तो एक मैट लेके जाते हैं, वो मैट उसको फर्श पे लगा कर जब पूरा खाना उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो हम बच्चे, ये बच्चे जो हैं वो कैसे जाते हैं, एकदम जॉस्लिंग करते हुए, पुशिंग असाइड पीपल इन अ क्राउड इन अदर टू गेट पास्ट दैम, एक दूसरे को पीछे करते हुए, करते हैं ना, भागते हुए जाना और पीछे अपने पास वाले से आगे निकलने की जो एक होड़ होती है, लाइक ऐसे हम भागते हुए जाते कि बस जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ, खाना शुरू कर दें. द फूड्स एंड प्लेस ऑफ माई चाइल्डहुड कैन still be found in Delhi. Now she is telling about recent days. Okay, so जो भी खाने में बचपन में खाती थी वो आज भी दिल्ली में आज भी ऐसे ही हैं. Morning still start in a haze of familiar smoke sent skyward by millions of stove and cookers. आज भी जो सुबह है वो ऐसी ही होती है कि एक हैज़ होता है, हैज़ मतलब स्मोक, डस्ट होता है हवा में, लोगों के कुकर का और खाना बन रहे होते हैं, स्टोव का, जो स्टोव होते हैं, स्टोव आपने देखे होंगे, इसके अंदर ऑयल डलता है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, ठीक है, तो कैरासिन ऑयल डलता है और उसके बाद उसको जलाया जाता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है. ओके, बट इफ़ मैं आज की बात करूँ, रिसेंट टाइम की, एकदम करेंटली, तो दिल्ली इज़ हैविंग अ ह्यूज पॉल्यूशन. ओके, द AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली इज़ really bad, very low. Why? Air quality index is considered, is measured on the basis of few gases available in our environment, in the air, and Delhi has different kinds of gases which are really bad, really harmful for our health, like carbon monoxide, sulfur dioxide, ground level ozone, PM2.5, PM10. ओके, तो दिस टाइप ऑफ गैसेस, दिस टाइप ऑफ पार्टी, ये जो पार्टिकल्स हैं ये हवा में है दिल्ली के, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली इज नाउ नॉट सो गुड. एंड अकॉर्डिंग टू ऑथर, द एयर ऑफ दिल्ली अर्ली मॉर्निंग, उसके अंदर कुकर और अच्छे अच्छे खानों की खुशबू हो, ये सब होता है. टाइम हैज़ चेंज नाउ. इन दोज अर्ली आवर्स पोटैटोज एंड पीस आर कम्बाइंड विद जिंजर. उस टाइम में आलू जो बनाया करते थे वो जिंजर और पीस, मटर आलू बनाया करते थे अदरक डालकर, जिसमें टर्मरिक होती थी और हरी मिर्ची, ग्रीन चिलीज होती थी. एंड चपातीज आर कुक्ड ओवर हॉट फायर्स. और चपाती जो है वो गरम गरम आग पे एकदम बनाकर उस पर जल्दी से बटर लगाया जाता था. एंड स्टक विद द वेजिटेबल एंड piece of mango pickle in a tiffin carrier to be carried by many people in their way to school and offices, just as I did on my way to school in Delhi. और फिर वो लंच बॉक्स पैक कर दिया जाता था जिसके अंदर आलू, मटर अच्छे से बने हुए, हल्दी और हरी मिर्च और जिंजर अदरक के साथ, एंड चपातीज जिसके ऊपर बटर लगा हुआ होता था, एंड स्टैक्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे रखी हुई, और बीच में उसके वेजिटेबल सब्जी रखी हुई, एंड अ पीस ऑफ मैंगो पिकल, और आम के अचार का एक पीस. आई थिंक इट्स रियली डिलीशियस. हाँ, सो इस टाइप का लंच बॉक्स उस टाइम के सभी लोग लेके जाया करते थे, चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हों, चाहे वो स्कूल जाने वाले हों, और मे बी कॉलेज और समवेयर एल्स. ओके, तो शी इज सेइंग दैट मैं भी सेम इसी टाइप का लंच बॉक्स दिल्ली लेकर जाती थी. सो दिस वॉज योर चैप्टर. We have completed this reading. I hope you love it really much. So your homework is complete workshop of this chapter and then submit into query group. Have a good day. Take care. Bye.